नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जाने माने सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की, जिनका आज पुण्यतिथि है। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास जन्मे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, उनके गाए गाने कई पीढ़ियां गुनगुनाती आई हैं और आगे भी गुनगुनाई जाएंगी। इस मखमली आवाज़ के दीवाने हर दौर में मिलेंगे। 13 साल की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पहला गाना गाया था। 1945 में आई फिल्म गांव की गोरी से उनका हिंदी जो फिल्मी सफ़र है वो शुरू हुआ था। 1950 से 1970 के बीच रफ़ी ने कई सुपरहिट गीत गाए। शानदार गायकी के लिए उन्हें 6 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया और सन 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 31 जुलाई सन 1980 को महज 55 साल की उम्र में ये महान गायक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भले रफ़ी साहब आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग पर छाए रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जनधारा मीडिया समूह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के बदलते स्वरूप, भूपेश सरकार की योजनाओं समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय प्रोफेशनल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत कई नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। Women and girls, and you always get compliment. How do you feel about it? No, as far as I'm concerned, I think it shows that they're very kind people. I shouldn't take But it. you have always been favorite of all of us, whether. Well, it's good. I respect women, and I show them that respect, so they feel that they can talk comfortably with me. That's all. Right. I think I have no particular magic about it beyond that. I thought you have some magic stick, and you can, tell us about that. How do you feel when you come to Chhattisgarh? You know, it's a very beautiful state. Now, Raipur, I know I was not here in the past, so I don't know, but what I've heard is the transformation has been dramatic, and certainly the infrastructure, the roads, the highways, the overall environment seems very, very attractive and very pleasant. Right. So I'm sure that the state is developing well. I have not been out to Bastar and the tribal areas. That is obviously a very special part of the Chhattisgarh experience. Of course, I would sir. love to see that on a future occasion. Yes, but sir. definitely it's a state which has got a lot of attention, and for us in the Congress party, it's a showcase Right. of how you can have a compassionate politics in our country. Right. So, how do you see in Chhattisgarh, where are the places that lack, and you feel that there are things to be done in the coming years? Well, I think definitely we all accept that the Adivasis, the tribals require special attention, because in many ways they have suffered a lot, and they are the original inhabitants of this country. Whoever we are, we have come from later waves of migration, invasion, whatever, and we owe it to them, I think, to ensure that their needs are given priority and met properly. And I would say, to be very honest, Suruchi, that if you look at the challenges, they're not easy, because on the one hand people say they need development, on the other hand if you are bringing in too much development, then you're interfering with their traditional life. If you go and exploit the forests, you're exploiting and damaging the environment. But if you don't, how do you bring the modern schools, modern hospitals, modern facilities? So there is a definite a paradox that needs to be overcome to get this done. In my own experience, I would say that the Congress Party's big strength in this kind of issue is that it approaches it with compassion, that the marginalized, the weaker sections are always given particular attention and help. Whereas if you look very seriously at some of the politics of other parties, the so-called Gujarat model is all a top-down model. It is big factories, big businesses, Right. Big GDP growth, but at the bottom level, the tribals, the Adivasis, child malnutrition, maternal mortality, Gujarat's figures are terrible. So that's where I think the Chhattisgarh model scores. Right. So, what would be a message for youth from you want to give? I think the youth, frankly, I tell them it's already your country. Yeah. More than 50% of the population is under 25 already. Right. And it's going to grow up higher percentage. So it's your country now, you have to take ownership of it. Which means I'd like to see youth more involved in public policy discussions. I'd like to see youth more interested in politics. Today a young 18-year-old student who had come to watch this came and said, I'm not interested in politics, my friends are not interested in politics, we're more interested in cricket and Bollywood. Right. And I said, I'm also interested in cricket and Bollywood, why not? But you should also be interested in politics, because politics is interested in you.
the decisions that politicians take is affecting your future, is outlining the possibilities and limiting the possibilities you have. The kind of country you're growing up in, the kinds of jobs that are available, the kind of university system you can have access to, all this is influenced by politics. Right. So you cannot stay away from it. Right. And finally, I would say to the youth that you have to be able to be equipped to take advantage of what this 21st century offers. Study, take training, develop your skills, and also have the kind of mindset where you can think out of the box. Of course. Because a lot of the jobs that come into stream tomorrow will be jobs that don't exist today. So no one can train you for it True, today. true. I often tell teachers, don't train the young people what to think, train them how to think. Right. Because then they can cope with all the unexpected developments of the Right. future. How do you see here when you see a lot of participants, a lot of professionals coming and joining, and they want to come into politics? What do you think you should be telling it to? Well, I do tell them, I'm often asked this question by young people. My answer is, by all means you must come into politics if you can afford it. Don't come in for the wrong reasons. Don't Right. come in a situation where you need money desperately and you're going to misuse your political office or political opportunities to make money. That's a terrible reason to come in. In that case, I would rather you worked for 20 years, put some savings in the bank, took care of your family responsibilities, and then came into politics. But if you were to come into politics for the wrong reasons, you're not doing the country a service. Right. Politics is not a job, it's a Right. cause, it's a mission. Right. And that's the spirit in which you must enter politics. So my own view is some people are fortunate that they don't need to worry about an income, they already have it, or their family has done well and blessed them with a good inheritance. Right. Such people can afford to come in young. Yeah. Others, my view is, you spend your young years learning your profession, learning skills, acquiring your capacity, and then you also take care of the family's material needs. Right. And then when you feel ready, when you are even 35, 40, then you Yeah. come into politics. You Right. can make more of a difference. I may have waited too long. I came in after 50. Right. But I would urge others to plan a little better if they have this interest. Great, sir. It was lovely talking to you. Thank you, Suruchi. Thank So you nice to so meet you. much for giving the time after a pleasure. long It's been day. a long day. It's been a very long long day. It began But- early and is finishing No, late. but it's always Thank you pleasure. so much. Congratulations and best wishes to the Jandhara Media Group for coming up with a 24/7 news channel for Chhattisgarh. I really wish you all success. Congratulations, Mr. Mishra. जय हिंद। छत्तीसगढ़ शासन ने पत्रकारों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति और राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों का गठन किया। उसके साथ ही राजपत्र में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है, जिसमें जंधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा समेत कई संस्थान के संपादकों का नाम शामिल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना कल शाम राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर एयरपोर्ट में उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर के निजी होटल पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश रमना से मुलाकात की, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। आज सुबह मुख्य न्यायाधीश रमना और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह में पहुंचकर डिग्री लेने वाले छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। बढ़ेंगे आगे खबरों में। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की यात्रा निकाली जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्र के तमाम नेता और कार्यकर्ता कम से कम 75 किलोमीटर तक पद यात्रा करेंगे और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। जारी निर्देश के अनुसार कांग्रेस की यात्रा प्रदेश के हर बूथ तक पहुंचेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क।
लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ, जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए, मन के मन लहरे। मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो रायपुर में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता आज इस शिविर में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले 2 दिनों के शिविर के दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जैसे तमाम नेताओं ने पहुंचकर आवश्यक दिशा। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों, पार्टी से संबंधित आवश्यक जानकारी और आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के साथ हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं और अंतिम वर्ष कंप्लीट कर चुके छात्र छात्राओं की डिग्री प्रदान की है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर में धीवर समाज द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। महानिरीक्षक सरगुजा एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा की पहल से चलाए जा रहे फिट कॉप फिट सिटी अभियान के तहत आज शहर के गांधी स्टेडियम से ऑक्सीजन पार्क लगभग 6 किलोमीटर सामूहिक दौड़ का कार्यक्रम रखा गया। दौड़ के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा लोगों को योग अभ्यास, प्राणायाम कराया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अभियान के तहत अपना वजन कम किया, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। बाकी सारी मंजिलें मिलती रहती हैं। मेरा नाम राजेश नायडू सर, मैं एक कंपनी के लिए काम करता हूँ हैदराबाद बेस। 7 बज जाता है, कभी 8 बज जाता है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मैं रोज देखता था। लकीली आज संडे मिला तो फिर मैं सोचा कि कहीं लेट ना हो जाए बोल के मैं मतलब जल्दी ही आ गया। तो उस टाइम में से
मेरे को फेसबुक के माध्यम से पता चला कि फिट को फिट चालू हुआ है। मैं वहाँ से ज्वाइन किया हूँ और रेगुलर आ रहा हूँ, 1 मंथ हुआ है। इसमें बहुत अच्छा लगा, मैं अपने ग्रुप से बहुत लोग को जोड़ा हूँ। ये जो मैं न्यूज़ के माध्यम से पता चला मेरे को, ये फिटनेस हाइक वाला जो सरगुजा पुलिस द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, वो न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो उसमें मैं शामिल होना चाहिए। यहाँ के मेरे को बहुत खुशी हुई है ना। यहाँ मतलब आम नागरिक के अलावा पुलिस विभाग तो हमेशा काम मतलब करते ही रहती है ये प्रोग्राम वगैरह, लेकिन आम नागरिक भी इसमें बहुत मतलब भाग लेके अपना फिटनेस को बनाने में लगे हुए हैं। और सरगुजा पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार का मतलब कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। सरगुजा पुलिस द्वारा फिट को फिट सिटी का एक कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे पुलिस विभाग एवं जो नागरिक वृंद हैं उनमें फ़िटनेस का एक कल्चर बढ़े और वो अपने आप को और स्वस्थ और ताज़ा कर सकें। इसी कड़ी में आज फिटनेस हाइक का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 3.5 किलोमीटर्स का रनिंग और महामाया पहाड़ के ऊपर में हाइक का एक कार्यक्रम था। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस कार्यक्रम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अब दिखने लगे हैं। बहुत लोगों का वेट कम हो रहा है और ऐसे लोगों को निरंतर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और इधर जशपुर जिले से हाइवा की चपेट में आने से एक कांग्रेस नेता के भाई की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल ये पूरा मामला जिले के बागीचा के तहसील चौक का है, जहां हाइवा ट्रक की चपेट में आने से कांग्रेसी नेता राम प्रसाद कोरवा के भाई शिव प्रसाद कोरवा की मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा ट्रक के ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम किया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बगीचा पुलिस हाय सबके जिला जोड़ दे, बगीचा पुलिस हाय, बगीचा पुलिस हाय। और इधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक 5 दिन की हड़ताल पर गए थे, जिसके कारण आम कामकाज सहित बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। बहरहाल यह हड़ताल खत्म हो चुकी है और अब सभी कर्मचारी और शिक्षक वापस अपने कार्यस्थलों पर लौट चुके हैं। लेकिन हड़ताल खत्म कर वापस लौटे शिक्षकों को उस वक्त पालक और बच्चों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जब धमतरी के शकरवारा गाँव के शासकीय स्कूल के बच्चों ने स्कूल के सामने ही उन्हें रोक दिया। करीब 1 घंटे तक बच्चों ने स्कूल के सामने ही प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षकों को अंदर जाने से रोका भी गया। आक्रोशित पालकों ने ये बताया कि 2 साल कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, अब हड़ताल करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद शिक्षकों को तब अंदर जाने दिया गया जब उन्होंने आश्वस्त किया कि हड़ताल के बाद 5 दिनों तक प्रभावित हुए बच्चों की पढ़ाई को अतिरिक्त आधा घंटा पढ़ाकर कवर किया जाएगा। शिक्षा ग्रहण करना है, ठीक है, और शिक्षा के महत्व शिक्षक को बताना है, ठीक बेटा। मैडम लोग हड़ताल में गए थे तो हमारा पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, इसलिए बैठ गए थे। मैडम मन के हड़ताल के कारण। काबर हड़ताल कर पैसा बढ़े गए तो तुम काबर हड़ताल में बैठ गए रहो? हमारा पढ़ाई मत रुके है। इन लोग अभी 5 दिन पहले हड़ताल में गए थे तो बच्चे लोग का पढ़ाई एकदम वो हुआ, खराब हुआ। तो हम लोग यही जानना चाहते हैं कि ये 5 दिन का पढ़ाई कैसे कवर होगा। इन लोग बोलते हैं कि बच्चे का 4 बजे छुट्टी होता है, हम लोग 5 बजे तक पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूँ 5 दिन क्यों पढ़ाओगे आप? संडे भी आओ स्कूल, आप क्या के लिए 5 बजे तक आओ? अगर आज शनिवार है, आप 11 बजे पढ़ा रहे हो, शाम तक पढ़ाओ आप। इनके टीचर लोग को भी इनसे कोई मतलब नहीं है, तो काय के लिए भेजे आप लोग? काय के लिए भेजे यहाँ पे अपन? हम लोग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 5 दिवसीय धरना पर गए थे। तो 5 दिवसीय समाप्त होने के बाद स्कूल आए तो जायज़ है कि मतलब पालक नाराज़ होना, तो पालक लोग वहाँ इकट्ठे थे दरवाजे पर। तो हम लोग समझाए बच्चों पालक को
उसके बाद आने दिए बच्चों। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ में सोहे, हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मोर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। न्यायधानी बिलासपुर शनिवार को फिर से रक्त रंजित हुए। मामूली बात पर उपजे विवाद को लेकर कुछ लोगों ने 2 युवकों पर चाकू, टांगिया और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में शहर के मुरुम खदान क्षेत्र में रहने वाला युवक ओम प्रकाश मानिकपुरी पैदल अपने घर जा रहा था। इसी बीच एक पिकअप वाहन से उस पर कीचड़ का छींटा लग गया। इस पर वाहन चालक समीर और ओम प्रकाश के बीच बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ देर बाद वाहन चालक समीर अपने दोस्तों के साथ आया और ओम प्रकाश पर चाकू और टांगिया से सिर पर और गले पर हमला कर दिया। बीच बचाव में आए युवक लोकेश वैष्णव पर भी हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। आसपास के लोगों ने दोनों युवकों को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। रास्ते पे जा रहा था, एक पिकअप वाला आया, तो पिकअप वाला कीचड़ मारते हुए उसके ऊपर गया। वो कीचड़ वाले को फिर वो गाड़ी वाले को बोला कि भाई आराम से चला, कीचड़ से क्यों चला रहा है करके। फिर ऐसे ही बहस हुआ तू मैं। फिर वो पिकअप वाला आदमी जो वहीं मुरुम खदान का निवासी है, वो अपने घर गया। फिर वहाँ से अपने 7-8 साथी के साथ आया। वहाँ से टंगिया, चाकू, तलवार लेके और फिर हमारा जो मित्र है उसके ऊपर वो हमला करने लगा। जिससे गले में मारने के इरादे से चाकू अड़ाया, वो चाकू मारा उसका और साथ में टंगिया से सर पे वार किया है। और इधर भिलाई के कैंप 2 से लापता हुए 6 साल के बच्चे का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि छावनी थाना पुलिस ने घटना के दिन ही धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी मासूम यश का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना में 23 जुलाई की शाम बैकुंठ धाम निवासी रजनी आनंद काम पर गई हुई थी। शाम को जब वह घर लौटी तो उनका 6 साल का यश आनंद दिखाई नहीं दिया। आसपास तलाश करने के बाद रजनी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। और इधर दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव का ये कह रहा है कि बच्चा छोटा है, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बच्चे को जल्द ही रिकवर कर लिया जाएगा। हमारे
पास आ जाए हमारे बच्चे। बच्चा लापता है क्योंकि नाबालिग बच्चे में 363 का FIR किया गया। पुलिस जो है पूरी तरह से में लगी हुई है क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, तो जल्द ही उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। बढ़ेंगे आगे खबरों में। बेमेतरा जिले के डगनिया गांव में हाल ही में उजागर हुई एक लड़की की खरीदी बिक्री के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बीती रात इस पीड़ित परिवार के घर पर ही अज्ञात लोगों ने जमकर पत्थरबाजी भी की है। इसके बाद इस मामले में और भी कई सवाल उठने लगे हैं। मामले की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता डगनिया पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की। इस बातचीत में पूरी घटना का तांत्रिक विद्या से संबंध होने की बात निकलकर सामने आई है। पूरा जानकारी होना चाहिए सबको, वहाँ गए थे मतलब पूरा कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और सब जब तक ग्रुप में है तत्काल खोज के निकाला है कि जुट बना के इनको पूरे जांच करके इनको गिरफ्त में लेना चाहिए सर, क्योंकि ये हर दिन का बात यही है कि एक दूसरे लिंग है, पता चलेगा फिर पत्थरबाजी होगा, फिर आएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे ये बच्चे का बात ही नहीं, सभी पेरेंट्स को ये चिंता लगी रहेगी सर। देखिए हम लोग उससे गए तो साहब बोले कि ये बात कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा का नहीं है, इसमें हम धारा नहीं लगा सकते बोले। तो पैसे उसे का मैं बोला उसको, साहब को बोला कि पैसे उसे का बात सुना हो सर के, तो हाँ सुना। तो कितना का मैं पूछा उसको कितना मांग किया, तो वही बताया कि 5-6 बताया वो साहब बोला थाना प्रभारी। उसके बाद 151 तो 151 में जब बात ही नहीं हुआ तो 151 में क्यों भेजा, ये मैं पूछा। ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है कि मैं वहाँ से उठा, फिर वो उसके साथ संग में हड़ताल पे बैठ गए। उसकी बेटी को लेकर मानव तस्करी का आरोप में कुछ लोगों का नाम सामने आया, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ के ग्रामीण जन थाना का घेराव किए थे। मुझे सूचना मिली तो मैं भी पहुँचा। पहले तो मामूली धारा लगाकर उनको बचाया जा था, 151 लगाया गया था। जब हम लोग को पता चला कि इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मामला में आप 151 लगा रहे हैं, तब उनके हम लोग जो मोबाइल जब्ती किए थे जिसका बैटरी डाउन था उसको चार्ज करवा के जब उसको हम लोगों ने खंगाला, तब उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियो देखे जो बड़ा यानी संदेहप्रद था, जिसको देखने के बाद एक मन में चिंता आई कि ऐसे अपराधियों को बचाया जा रहा है। तब पुलिस ने दबाव में हमारे उनके खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया। ये मामला दर्ज हो गया, उसके बाद हम लोग चले गए। उसके बाद जब पता चला रात में जब हमारी बहन लोग वापस गांव आए, घर आए, तो उनके घर पे पथराव किया जा रहा है। एक डर का माहौल है, देख सकते हैं यहाँ ये स्थिति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।